cities, particularly about Harappa and other. So in the last class, we were discussing about the ancient cities, particularly Harappan cities, and the early historical cities that developed in India and in other parts of the world also. So today we'll have a discussion on the approaches to the study of medieval urbanization. How in the last class we have also discussed about what is urbanization and what is the definition and how it means how urban centers developed in ancient period in different parts of the world, especially with reference to India and and with regard to Harappan civilization or Indus Valley civilization. So today we'll discuss about the medieval urbanization. ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସହରୀକରଣ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗତକାଲି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ବାନ ସେଣ୍ଟର ବା ସହରୀକରଣ ହେଇଥିଲା ବା ସହର ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା କି ତାର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀର କୋଉ କୋଉ ଅଂଶରେ ସହରର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ अर्ली हिस्टोरिक साइट्स रे। सो अर्ली हिस्टोरिक सिटीज गुड़िक आमर इंडस वैली सिविलाइजेशन परे जो सब सहर गुड़िक डेवलप होता तापर आलोचना करी। यही कंटेस्ट रे आमे आम ओडिशार शिशुपालगढ़ विभिन्न एस्कावेशन कथा आम कर रिसेंट एस्कावेशन किपरि भाबरे। So recent we have also discussed about the recent excavations which is offered in different parts of India and outside. So in this context we had also discussed about about Sisipalgarh, a city which is said to be the capital of Kharabeda or Kalinga Nagari. Anyway, so there we have discussed about certain some important archaeologists and their works. So anyway, today we'll discuss about the approaches to the study of medieval urbanization. आज आमे मध्ययुगीय शहरीकरण उपरे आलोचना करिबा। Cities as indicators of economic growth and social change mean different things in different historical periods and regional contexts. जेते के सहर हमर सारा पृथ्वी रे, खाली भारत नुहे सारा पृथ्वी रे जेते आड़े तुम सहर देखुच, एटा हमर इकोनॉमिक ग्रोथ को बा अर्थनैतिक प्रगति एवं सामाजिक परिवर्तन को नहीं विभिन्न समय रे एवं विभिन्न आंचलिक भित्ति रे यह माने गठित होइछ। जे कौन से सिटी तार इकोनॉमिक नीड को नहीं बा सोशल चेंज, बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। सो एवरीवेयर इफ देयर इज नो लॉ नो चेंज देयर इज नो लाइफ एट ऑल। सो जदि जीवन रे परिवर्तन नहीं ताहले ताहले से जीवन जीवन भी नहीं। लाइफ इज नॉट स्टैटिक, जीवनटा स्थिर नुहे, इट इज चेंजेबल। सो लाइफ मान प्रत्येक जीवन जमी आमर चेंजेबल से भाया सोसाइटी मनीष को नहीं कि सोसाइटी तेणु सोसाइटी चेंज हुए, इकोनॉमी चेंज हुए। तो सही अनुसार आमर इकोनॉमिक नीड को बेस करी बा आमर अर्थनैतिक प्रगति को बेस करी आमर सहर गुड़िक गढ़ी उठी था। विभिन्न प्रकार सहर आम उदाहरण दे पारे, जमी मुंबई। टेक फॉर एग्जांपल मुंबई हूँ कैपिटल सिटी ऑफ इकोनॉमिक सिटी ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। भारतर अर्थनीतिर राजधानी से दिल्ली राजधानी हो पारे, किंतु भारतर अर्थनीतिर राजधानी हूँ मुंबई। सो आमर विभिन्न सहर विभिन्न प्रोडक्शन पाई मध्य
फेमस थाए बा सेठिकार इकोनॉमी कहा को माने किपरि भाबरे डेवलप करिछि से शहर को नेकी माने से एरिया रे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नेकी से सिटी रे पैरामीटर टा को डिसाइड करा जाय एनीवे though the nomenclatures of city and town are used for all historical periods by many without much time-wise distinction, historians know for certain that content of history and town changes over time. So, जो सहर बा सिटी हेले गोटे बड़ सहर कथा बुझुछि टाउन हेले गोटे छोट सहर कथा बुझुछि सो प्रत्येक ऐतिहासिक समय इतिहास प्रत्येक समय आमे ये जो दीटा ना सिटी किंबा टाउन एक आमे देखि आछन तार समय को नहीं कि ता अनुसार डिस्टिंक्शन अछि बा ता भीतर तफात अछि पार्थक्य अछि सो ये जो सिटी बा टाउन रो परिवर्तन है ता समय रो परिवर्तन को लेकिन गठित इन अदर वर्ड्स urban centers are not static अन्य अर्थ रे कहबा को गले शहर माने शहर गुड़िक रो शहर रो केंद्र गुड़िक static नुहे बा स्थिर नुहे on the other hand they keep on changing their meaning over time on the basis of changing larger economic processes which within which they get shaped and formatted so प्रत्येक शहर प्रत्येक बड़ शहर हो छोट शहर हो ता इकोनॉमिक माने चेंजेस को ना सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस बा सामाजिक स्तर रे अर्थनैतिक स्तर रे जो परिवर्तन रा प्रक्रिया को लेकी गठित होता है जते बेले गोटे परिवर्तन आसे समाज रे एबे देखो टेक फॉर एग्जांपल वी कैन टेक दिस कोविड-19 so amar jo covid-19 case re dekha economy has collapsed in maximum countries of the world so amar bartaman jo economy ta chali chhe it's a haphazard means it is not as usual it was in earlier days आम आ पूर्व जो अवस्था रे हमर इकोनॉमिक ग्रोथ रा जो रेट रे होतला सही रेट रे हेई पारुनी अनेक अनेक लोकंकर अनेक कंपनी रो मेरुदंड भागी जाय अनेक देश रो अर्थनीति रो मेरुदंड भागी जाय इवन वी कैन से ऑफ अमेरिका कंट्रीज लाइक द माइटिएस्ट कंट्री लाइक अमेरिका तार मध्य अर्थनीति रा भुसुडी पड़ी छ मैक्सिमम देश पृथ्वी रो ए कोविड-19 जोगु माने अफेक्टेड होइछंती एवं वर्तमान चेंज होछि इकोनॉमी टा एवं आउट गोटे एई कॉन्टेक्स्ट में आउट गोटे एग्जांपल दबा को दउछि टेक फॉर एग्जांपल चाइना's attack on India so भारत को ऊपर तार जो बाजार भारत रो बाजार तो इंडिया इज ए ग्रेट मार्केट मींस ए बिग मार्केट फॉर चाइना बट with the attack of China over Indian border at Galwan. So what happened? Our Prime Minister declared that we should be self-dependent, Atmanirbhar Bharat. We will not depend upon China. So हमें China पर depend करिवा नहीं. So more कईबार कथा थिला जे my view is that we should means the the economy is being changed according to the time वर्तमान समय रे भारतर प्रधानमंत्री आगुर सेम चाइना सहित हमर बिजनेस जोर चलीतेला एबे मध्य चाली अल्प मात्रा रे किंतु हमर जो से तार 59 एप्स ऊपर जो प्रतिबंधक हो तो आरंभ करी जेतिकी बैन करा है सब चाइनीज गुड्स गुडा को परे so it is the need of the hour so amar social au economic process amar changes jo hela ta phal re tar reflect kala जो ट्रेड रिलेशन ऊपर बा सेना मध्य शहर ऊपर प्रभाव पकेला सो और गुडे एग्जांपल अछि एनीवे सो ताको डिस्कशन कले गुडे समय जबो so this type of perception made some to look at
town city to be a social form in which essential properties of larger systems of social relations are grossly concentrated and intensified. So ये जो perception टा आसुची जो चिंताधारा विचारधारा आसुची गोटे सामाजिक आवश्यकता को लेके आसुची गोटे सामाजिक संपर्क को लेके आसुची सेटा बेसिक concentrate हो the perception that cities are reflective of larger socio-economic processes inherently prompts many to look at cities of medieval period as something significantly different from the ancient period and also modern period, where entirely different systems of social relations operated. मध्ययुगीय सॉरी प्राचीन समयर बा अर्ली पीरियड जो एंशिएंट पीरियड जो सिटी एंशिएंट पीरियड सिटी एवं आधुनिक बा आजिकार जो डेट रे जो सिटी आउ मध्ययुगीय पीरियड बा मिडिवल पीरियड जो सिटी ता भितरे अनेक पार्थक्य रही एटा काहाकु नै कि पर्यवेक्षित ना सोशल रिलेशंस को नै कि पर्यवेक्षित सोसाइटी को नै कि एक्चुअली आमे समस्त बंची छंती हमर इकोनॉमी हमर अर्थनीति राजनीति सबु जिनस हम संस्कृति सबु हम सोसाइटी को नै कि गठित बा मनीषर आवश्यकता मनीषर जो माने से एरिया रो लोकंकर आवश्यकता किबा से लोकंकर जो सामाजिक किबा अर्थनैतिक प्रक्रिया तत्कालीन प्रक्रिया को नै कि ए सिस्टम ता डेवलप करछि सिटी गुडाकर डेवलपमेंट हेछि बा मनीषा जो स्टेज रे अछि सेते बेले मध्ययुग पृथ्वी सारा नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सो पृथ्वी अन्य पार्ट रे मध्य कौन हेतला ना सामाजिक क्षेत्र रे जो हमर ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन शिक्षार अभाव अंधविश्वास और कुसंस्कार माने अधिक ए परिमाण अधिक हो गला जा फल रे कि सेते बेलर लाइफ पूरा अंधकारच्छन्न कहले ठीक हो कारण अनेक क्षेत्र रे समाज गोटे धर्म द्वारा बेसिकली परिचालित होगला विशेषकर अंधविश्वास और कुसंस्कार द्वारा मध्ययुगीय यूरोप हो बा मध्ययुगीय भारत हो तो सही अनुसार हमर सिटी मध्य बा टाउन गुडी कर मध्य डेवलपमेंट हेतिला सो idea of medieval cities in Europe. While arguing that cities are indicators of economic growth over time, historians and sociologists have also been trying to look into the nuanced nature of urban processes corresponding to it. So, आमे जो कहले जे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कथा बा इकोनॉमिक ग्रोथ रो जो इंडिकेटर कथा बा अर्थनैतिक प्रगति रो जो पैरामीटर बा परिमाप जाको कहउसंती आमे सो एई परिमाप अर्थनैतिक परिमाप ही उभय ऐतिहासिक एवं समाज जो सोशियोलॉजिस्ट बा माने हमर समाज समाज विषय समाज तत्वविद माननकु से मानकर डिफरेंट माने ए जो नुआ ए जो तत्व उपरे से माने तांकर जो अभिव्यक्तिटा को इकोनॉमिक पैरामीटर को बेस करी कहिसंती बा सिटी गुडी कर डेवलपमेंट हमर अर्थनैतिक प्रगति को लेकी पर्यवेक्षित से कथा ऊपर वर्णना करछंती मार्क्स वेबर is an eminent sociologist. He perceived that the western medieval cities to be the centers of production in contrast to ancient Greek or Roman cities. वेबर का मतरे बा वेबर जो भाबतले बा तांका चिंताधारा होची जे पाश्चात्य जगतर जो पाश्चात्य मध्ययुगीय सहर गुड़िक प्राचीन ग्रीक किंबा रोमन सहर गुड़िक तुलना रे भिन्न थिला विशेष करी यह उत्पादन रा केंद्र थिला
which were largely centers of consumption. से कहते जे एई जो सेंटर गुड़िक एंशिएंट पीरियड रे को होतला ना केतक हमर शहर गुड़िक रे प्रोडक्शन होतला किंतु मिडाइवल पीरियड रे कौन हैला ना इट बिकेम ए सेंटर ऑफ कंजप्शन मींस द प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ क्राफ्ट इंडस्ट्री ओनली बट माने केतळ क्राफ्ट इंडस्ट्री जो कारीगरी विद्या विभिन्न प्रकार कारीगरी कौशल ये देखा जाउतला कोटी हमर शहर रे किंतु जो फूड प्रोडक्शन टा फूड आस्तला ना हमें सेटा को रूरल एरियाज रो आनतले आनी तक बिक्री करतले कोटी ना medieval cities. So the medieval cities are said to have become the launching pad for the development of capitalism in the West when they combined processes of production with those of exchange, also gave political and cultural priority to the interests of producers and traders over and above those of the consumers that had been the case during the ancient period in the West. सो ये जो मध्ययुगीय सहर गुड़िक कौन है ना परवर्ती पर्याय रे पुंजीवाद रो उन्नति पाई बा पुंजीवाद रो डेवलपमेंट पाई एटा काम देइथिला एक्चुअली मध्ययुगीय यूरोप रे पुंजीवाद रो आगमन केबे हेतिला ना जते बेले हमर फ्यूडलिज्म रो पतन हेतिला बा सामंतवाद रो पतन हेतिला सामंतवाद रो पतन पुंजीवाद को आह्वान करिथिला बा पुंजीवादर उत्थान पई रास्ता खोली देथिला. So there was a transformation from feudalism to capitalism. And how it developed with the development of cities, medieval cities. The cities played a significant role in transforming feudalism टू कैपिटलिज्म. जो मध्ययुगीय सहर गुड़िक कौन कले ना एमाने गोटे बड़ भूमिका तांकर रहिला जो क्या फ्यूडलिज्म को डिस्ट्रॉय करेगा आज बिकॉज द मिडिल क्लास पीपल लिव्ड इन दिस टाउन और सिटीज दे प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल दे हेल्प्ड द किंग से राजा मान को तत्कालीन राजा मान को साहाय्य कले by providing funds, providing army. They had their own army also. So they ये जो traders माने the middle class का भीतर traders आसुतले teachers आसुतले बा जो money lenders आसुतले कि बा हमारे जो craftsmen आसुतले समस्त लोग आसुतले जो हमका पकड़ पैसा आतेला तो ये समस्त लोग so they became the change maker from feudalism to capitalism. So anyway, so ये जो कथा कहूतले आमे capitalism रा development हैला medieval cities रा development फଳରେ एवं जो राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इंटरेस्ट ताकू मध्य गुरुत्व प्रदान करा गला एवं एटा किए करैले ना जो ट्रेडर्स माने करैले ठीक है बा जो बणिक माने करे बा बणिकଙ୍କ भितर केतक राजनीति व्यक्ति गले हम मानक वर्तमान कॉन्टेक्स्ट रे भी देखिबा जो मानक पाखरे धन अछि दे आर द किंग मेकर्स दे आर द पॉलिसी मेकर्स be it Ambani be it any type of corporate sector they are the policy makers से माने चेंज करछन सिस्टम तांका पाखरे पैसा अछि सब जिंस सेमान चेंज कर दोछन तांको they are helping the government in different ways. So से ता फलर कोन होछि ना परिवर्तन होछ ठीक अछि हमें जदि ता भीतर को जिबा त बहुत कथा आलोचना करियो जेतु एटा पब्लिक फोरम सो टिके डिस्कशन करबा को संकोच बहुत होछ एनीवे सो ए जो कैपिटलिज्म ता सॉरी ए जो कोन कहतली जे ए जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ता कहा द्वारा होची ना ट्रेडर्स मान द्वारा होची बणिक माने वर्तमान जो कैपिटलिस्ट अछंती तांकरी द्वारा ही होची. So Max Weber also refers to the types of social activities
happening in the western medieval towns from the part of these producers and traders for constituting or evading some form of power. So Max Weber कहले ये जो सोशल एक्टिविटीज बा सामाजिक कर्म गुड़ाक होची ताकू कौन करा जाउछि ना जो मिडेबल टाउन रे बा मध्ययुगीय शहर गुडी करे एमाने the producers or the traders एमाने they played a significant role in evading some form of power किसी पावर को सेमाने दूरे रखिया ପାଇଁ चेष्टा कले बा सेमाने they played a significant role in the power play एबे भी तुम कहथली सही कथा जे आम पॉलिसी जो चेंज होच सेटा का द्वारा होच ना कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा ही होच आमे साधारण जनता आम पाखरे फैसिलिटीज दरकार आमर 5G नहीं we had to depend upon China. So now Mukesh Ambani had taken the risk of distributing this 5G to us. So से जो अंबानी जो करिया को चाहूचंती सो ताको अनुसार से पॉलिसी ता चेंज करे हमर जो हमर टेलीकॉम सेक्टर रे जा भी के पॉलिसी करिया कथा से ही चेंज करे एवं कारण से सर्विस जो कोछ कारण से गोटे नुआ जिनस आणुचंती मार्केट को नुआ प्रकार प्रोडक्शन हमकु देले ये जो प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स में कथा कहछंती हमें से गोटे नुआ जिनस प्रोड्यूस कले ही प्रोड्यूस्ड a new thing before us otherwise or else we had to depend upon the traders like China so हमको ताको ऊपर डिपेंड करिया पड़ी था जोटा वर्तमान आत्मनिर्भर भारत जो प्राइम मिनिस्टर कहछन जो से अनुसार हमें ताको ऊपर डिपेंड करूगा so as because he is an Indian and it is good for the nation anyway so भारत पई से जो नुआ जिनस आनिले मो मूल कथाटा होची प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स सो एई दीटा लोकंग ऊपर मार्केट ता डिपेंड करूछ जे प्रोड्यूस कला एवं जे ताकू बाजार बिक्री कला The urban dwellers in medieval West constituted of the producers and traders broke their dependence on legitimate feudal authorities around them and usurped power from them to resort to non-legitimate domination by putting themselves legitimately on artisans and peasants who in turn were required to rely upon them. एट कौन है ना जो अर्बन डुएलर्स बा शहर रे रहउतबा लोक माने कौन कले ये पर्टिकुलरली मध्ययुगीय पाश्चात्य मध्ययुग रे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मिडिवल वर्ल्ड सो सेमाने कौन कले ए जो प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स तुम कहते जस्ट आगुरु जे सामंतवादी फ्यूडल अथॉरिटीज कथा है सामंतवाद राजा का कथा पड़ी सामंतवाद जमींदार का कथा पड़ी जो माने इकोनॉमी टा को कंट्रोल करूथिले प्रायर टू रेनेसांस सो नवजागरण पूर्व एमाने जो कंट्रोल करूथिले परवर्ती स्टेज रे जेते बेले मार्केट रे डेवलपमेंट हैला 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स 9th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो डेवलपमेंट आस्ते आस्ते हैला ऑल ऑफ अ सडन रा हेई सो आस्ते आस्ते शहर छोट छोट शहर हैला तुम काली कहिथिली जे हमर जेते प्रोडक्शन बढ़िला जेते एग्रीकल्चर सेक्टर रे प्रोडक्शन बढ़िला ता फळ का हला सेगुडा बिक्री हला कोठी ना छोट छोट फेयर बा मेला यात्रा सब बसला हेटी वर्ष को थारे किबा 6 मास को थारे एबडा बिक्री होतला तापर लोक आवश्यक कले जे ना गोटे डेली मार्केट दरकार डेली मार्केट रे भी चालुतला व्यापार आरंभ हला एवं जो मार्केट सिस्टम रे डेवलपमेंट हैला मार्केट सिस्टम रे कोन हैला ना हमर जो नेण देण व्यवस्था बा बाटर सिस्टम थिला तम कहतली जे तुमे किछि गोटे जिंस दबा ता बदले आ गोटे किछि जिंस दबा सो एटा मध्ये असुविधा क्रिएट कला परवर्ती स्टेज रे चाकू बंद करा जाय कि पुणी कोन करा गला ना जो मनी इकोनॉमी बा मुद्रा रा करेंसी रा डेवलपमेंट हैला करेंसी डेवलपमेंट हैला फल ट्रेड एंड कॉमर्स रा डेवलपमेंट हैला तापर विभिन्न प्रकार गिल्ड मध्य बाहरला बा जो हमर जो गिल्ड्स वे दीजन बैंक्स
they works like banks and corporate sectors. So ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲେ including power. जो power କଥା ଆମେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି producers and traders, particularly the traders, they became the means the center of the power. ସେମାନେ control କଲେ. So ଏଇ ଯୋଉ medieval authority को ଯାହା କହୁଥିଲି ଏମାନେ କଣ କଲେ ଦେ ଏଇ ଯୋଉ legitimate feudal authority जो ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଭରସା କଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଲିସି ଛାଡିକି ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ନିଜର ପଲିସି କଲେ ଯୋଉ ସହରରେ ରହିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା କାହାର ନା ଶାସନର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଠିକ ଅଛି ବେପାର ବଣିଜ୍ୟର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା सोसाइटी मंदिर फंदिर सब जिन गढ़ी उठिला सब जिन राजनीति से उठिला भुवनेश्वर देख टेम्पल सिटी ऑफ ओडिशा भुवनेश्वर जी मैक्सिमम बहुत मंदिर से जी सहर अच्छी आम से बड़ बड़ मंदिर या गाँव कौन बड़ बड़ मंदिर हो कहीं ना से बहुत लोग रोच पैसा वाला लोग रोच से जहाँ भी हो सो मोर कहवा कथा हूँ जो अर्बन डुवेलर्स जो रहिले मिडाइवल वेस्ट रे से माने कौन कले ना फ्यूडल अथॉरिटीज को तांका जो से जो तांकर जो लेजिट तांकू तांकू बाद दे कि एमाने कौन कले सेमान गठारु पावर टा छड़े सो पावर छड़े यानी कि सेमाने निज हाथ रे से को जो सिस्टम टा को गढ़े सेति मध्यरु किछि जा कहउतिल किछि ट्रेडरन भितर किछि पॉलिटिशियन बाहर आज मध्य किछि ट्रेडर्स माने बा कैपिटलिस्ट भितर किछि मध्य हमर राजनीतिक व्यक्ति मध्य अछन आज का जमाना जदि आमे कंपेयर करंती बा एग्जांपल आमे नियंती विभिन्न प्रकार किंबा पावर सेक्टर रे सेमान पावर कॉरिडोर रे सेमानकर दबदबा बहुत तो सेमाने कंट्रोल करूचंती देशटा कंट्रोल करूचंती माने स्टेट टा जहाँ हाथ पैसा सी कंट्रोल कर सो इट वाज थ्रू रैशनल associations and confraternities of boroughs that the latter usurped power and there were cases when a private club of rich citizens claimed for their right to grant citizenship. So এই जो पावर छड़े के आनिबा बा शक्ति बा से पावर टा छड़े के आनी की एमाने कौन कले ना विभिन्न प्रकार जो रिच सिटीजन माने थिले बा एई टीका में तो कहि परिबा बणिक मानक कथा बा जो माने धनी कैपिटलिस्ट कथा एबे कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट कॉन्टेस्ट आसु से तळे धनी सिटीजन बा धनी नागरिक कथा होची सो से माने कौन कले दे claimed for their right to grant citizenship. So जो मध्य युगीय एटा एक्चुअली तुमे टिके क्लियर हबो जदी फ्यूडलिज्म कथा हमें टिके मु जस्ट इंट्रोड्यूस करिवि काहे कि ना ए जो कॉन्सेप्ट क्लियर सेति बळे हे परियो आगुर कोन थिला हमर फ्यूडल सिस्टम रे जो भासल माने बा तांको अंडर जो माने रहउथले दे हैड नो राइट दे हैड नो सिटीजनशिप सो तांकर किछि नागरिक बोली किछि अधिकार नथिला दे हैड टू वर्क अंडर द फ्यूडल लॉज एंड देयर लाइफ वाज वेरी प्रिकैरियस अत्यंत दयनीय परिस्थिति देखि गति करूथिले को माने ना ए जो सेते बेले जो जब सामंतवादी राजा मान कंडरे जो माने थिले ठीक अछि सो तांकर किछि अधिकार नथिला से माने निजको गोटे नागरिक बोली कि माने क्लेम करि पारु नथिले परे कोन हला 9th 10th सेंचुरी ऑनवर्ड सेते तुम कहली जे जते बड़े मार्केट डेवलपमेंट हला तापर विभिन्न सिटी रा डेवलपमेंट हला से छाड़ी की किछि लोक कोन कले ना छाड़ी की पड़ी आसिले कोठी की ना शहर को पड़ी आसिले सेते बेले गोटे मिडाइवल यूरोप रे गोटे प्रिंसिपल थिला जे जदी गोटे सर्फ बा जो भूमिकृत दास हमें कहबा ता ओडिया रे भूमिकृत दास जदी सी छाड़ी के पड़ी आसुतला ता मालिक को बा जो फ्यूडल लॉर्ड बा सामंत को छाड़ी की पड़ी आस सामंत राजा को छाड़ी पड़ी आसुतला एवं वर्षे पर्यंत शहर को पड़ी आसला एवं शहर रे से वर्षे पर्यंत ता लोक किबा सामंत जेमिति ताको न पाए जदी से लुचि रही पारिला ताहाले ही बिकेम फ्री सो से मुक्त हो गला
सो यही भली कौन कले ना अनेक लोक जो माने लुचिकी पड़ी आसिक सहर रहिले वर्ष पर्यटन देखा देले तापर से कौन ना मुक्त हो गले अने ये गला किसी लोक कथा आउ किसी लोक जो मैंने तुमको कहली सो सेतेबेले आउ गोटे सिस्टम फ्यूडल सिस्टम रे कौन थिला ना ये जो हमरा होली वार्स हेतिला 12th 13th सेंचुरी रे सो सेतिक बेले कौन हैला ना ये जो होली वार वाज ए पर्टिकुलरली द क्रूसेडर्स सो ये जो क्रूसेड मींस होली वार जो धर्म युद्ध हेतिला it was a war between the Muslims and the Christians. So what happened in the wars of crusade the the Christian landlords or the Christian feudal lords, they suffered a lot. They many of them were died in the battle, and those who returned to their native place, so they had no alternative. So जो माने जो धर्म युद्ध रे पार्टिसिपेशन करिया को जाइथिले ताबे अधिकांश मरी गले एवं आउ जो फेरी आसिले तांका पाखरे सेति पैसा नथिला सो से माने कोन कले ना डिक्लेयर कले जदि तुमे हमकु किछ पैसा दे देबो तांका जो सर्फ माने थिले तांका कहले तमे माने जदि हमकु पैसा दे देबो ताहले यू आर फ्री टू गो सो तमे मध्य सिटीजनशिप पाइबो तुमे हमठार मुक्त हेतु सो यही कामटा को माने कले ना जो माने सहर रे कि वाणिज्य व्यापार करथिले बा वणिक माने ट्रेडर्स एमाने कोन कले ना पैसा दे देले तापरे निजर सिटीजनशिप टा को किनि आनले ठीक अछि एवं से कथाटी को जाउछि सो द एटमॉस्फियर ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट ऑफ द सिटी दैट अलाउड रैशनल इकोनॉमिक एक्शन free conduct of trade as well as pursuit of gain and protected the interest of the producers both in the domains of economy and power exercise was instrumental in the development of work ethic in medieval western cities. So यही जो पावर टा समय जो सिटीजनशिप टा पाइले ता फल कोन हैला ना तांका भीतर गोटा ऑटोनॉमी आस ए जो सेमान सिटी रे रहउतले सेमान को नेकी त सिटी ना तेणु ये जो सिटी गुड़िकर ऑटोनॉमी आसला बा स्वतंत्रता बा स्वायत्तता आसला से निजे निजे को शासन कले ता फल कौन है गोटे रैशनल इकोनॉमिक एक्शन डेवलपमेंट फ्री कंडक्ट ऑफ ट्रेड माने मुक्त वाणिज्य व्यवस्था आरंभ है एवं एथिरे कौन है प्रोड्यूसर्स आउ ट्रेडर्स ए दी जनकर इंटरेस्ट को बेसी गुरुत्व दिया गला ठीक है सो यही जो ट्रेडर्स मानकर बा प्रोड्यूसर्स मानकर इंटरेस्ट को गुरुत्व दिया गला बा तांका स्वार्थ को गुरुत्व दिया गला ता फल रे कोन हैला ना गोटे वर्क एथिक रे डेवलपमेंट है ठीक है गोटे वर्क कल्चर आमे कहबा बा कर्म संस्कार बा संस्कृति बा कर्म मूल्यबोध जहाँ हमें सो से एटा मिडेबल सिटी वेस्टर्न सिटीज रे पाश्चात्य शहर गुडे मध्ययुगीय पाश्चात्य शहर गुडी करे डेवलपमेंट हवा को लागे सो मार्क्स वेबर आर्ग्यू करंती मार्क्स वेबर आर्ग्यू दैट व्हाट कंस्टिट्यूटेड एन आइडियल फुल अर्बन कम्युनिटी वाज a settlement displaying relative predominance of trade commercial relations and having a fortification a market a court of its own and at least partially autonomous law, a related form of association and a required amount of autonomy and autopsy play that allowed the burghers to participate in the election of authorities that governed them. This was an ideal, typical construction which was also excessively Eurocentric. वेबर आर्ग्यू करते वेबर जुक्ति करती जे ए जो अर्बन कम्युनिटी टा डेवलपमेंट हैला से माने कौन कले ना जो दिस तुम कहते आगुरु जो मिडेवल सिस्टम रे हमर सामंत राजा मान
ସେମାନେ कौन करथिले ना कोर्ट रहउथिले ना फोर्ट रे रहउथिले ठीक अछि गोटे फोर्ट रे रहउथिले फोर्ट भितरे ସେମାନେ बा जे दुर्ग भितरे ସେମାନେ रहउथिले दुर्ग भितरे सब तांकर व्यवस्था थिला एबे जेमिति हमर गोटे आमे एबे त कि दुर्ग रे रहउ नंती धर जो माने बड़ बड़ इंडस्ट्रियलिस्ट हेले कि जे कोनसे धनी लोक हेले देखिबो तांकर जो घर गोटे बड्ड बाउंड्री बुले ठीक अछि जे कि लोक गोटे किलोमीटर 2 किलोमीटर लेखा जागा रे भी घर करछन किए लोक माने साधारण लोकटे स्क्वायर फुट रो जब माने किनिया पई ताकू केते कष्ट होउची किंतु जो माने अति धनी लोक से माने मुंबई हो दिल्ली हो जे कोनसी बड़ बड़ जागा रे मध्य किलोमीटर वाइज जागा ने कि सेठी मध्य से माने घर करि पारुछन गोटे राजप्रसाद भलिया घर करछन सो एबे राजप्रसाद र कथा नहीं एबे आमे सो से समय रे फोर्ट टाइप रो ए जो बड़ बड़ स्टार ट्रेडर्स माने माने मध्य आ से माने करथिले कोन गोटे गोटे बड़ बड़ दुर्ग करथिले ता भीतर से माने मार्केट थिला से मानकर निजर पोर्ट थिला एवं ऑटोनोमस पार्शियली ऑटोनोमस लॉ मध्य ए माने पर्टिकुलरली ए जो जिंस गुडाक कोन कला स्वेच्छाचारी शासन इ माने तांकठ शासनटा छडेले पुणी शासनटा कले निजे मध्य सही टाइप रा किछि लोक जो माने अति धनी लोक से माने शहर को कंट्रोल करिया शहर को माने जे एरिया रे तांकर कर्तृत्व थिला जोटी प्राधान माने पावर थिला से एरिया गुडी को तांको कंट्रोल को आनिया को चेष्टा कले एवं केते क्षेत्र रे कोन हैला ना जो जो जदि समाने कोन से शहर किमा शहर रे जो राजनीति रे जो जहा की विभिन्न इलेक्शन होतला इलेक्शन माध्यम रे सब अथॉरिटी बचा जाउतला सेथिरे मध्य समाने पार्टिसिपेट कर ठीक अछि सेमाने निजोकू बेले बेले जिमदे हमर एबे एबे हमर राजनीतिक अवस्था जहा देश रे तो साधारण लोकटे इलेक्शन लड़ी परिबो नाही केही लड़ी की भी जीति परिबो नाही अनलेस अंटिल यदि ता पाखरे पैसा नाही किंबा और एल्स he is being supported the uh, by any rich person or by any rich party कोनसी ताकू यदि कोनसी टंका किए यदि मागा आठना पैसा खर्च न करिकी कई लोक इलेक्शन जीति पारिबो कि भारत वर्ष रे कि कोनसी राष्ट्र रे के भी जीति पारिबो नाही ताकू खर्च करिया पड़िबो खाली व्यक्तित्व देखिकी वर्तमान कोन कोनसी जुग रे भी ताकू इलेक्शन रे लोक जीतउ नथले किछि ताकू खर्च करिबा को पड़िबो आउ अनेक केस रे जो धनी मान का केस रे कोन होउची ना पैसा बिचुचंती इलेक्शन जीतुचंती से सेम सिस्टम सेते बेले मध्य थिला सेही जिंस गुडा आमे एबे ताकू इनकॉर्पोरेट करूछन आमे ताकू अपनोछन जिंस गुडा anyway so the role of medieval cities in the process of transition from feudalism to capitalism has been a theme of vibrant academic debates for a long span of time and so has been the theme of formation of a working class in the cities as inevitable component of social evolution हमर जो सामाजिक विवर्तनवाद आसिला सामाजिक विवर्तनवाद रे कौन हैला ना जो medieval cities गुडी दे तुम कहउतले जा दे played a prominent role in the process of transition or transformation from feudalism to capitalism जो परिवर्तन हैला ट्रांजिशन हैला सामंतवाद रु कोउटी की ना कैपिटलिज्म बा पूंजीवाद सो एथे अनेक ऐतिहासिक अनेक सामाजिक समाज तत्वविद से विभिन्न कथा कहिसंती हेनरी Pirene argues for the primacy of medieval cities and long distance trade as the engines of social change and views that with the commercial revival in Western Europe from 11th century on the country started orienting itself towards towns.
हेनरी पिरेनଙ୍କ ମତରେ ଏଇ जो प्रारंभिक स्तर रे जो ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସହର ଗୁଡିକ ଏବଂ दूरगामी वाणिज्य व्यवसाय सेमाने बा एई दिटा जिंस मध्ययुगीय सहर आउ सुदूर वाणिज्य व्यवसाय सामाजिक परिवर्तन रे एक इंजिन भली काम देइथिला बा हाँ इंजिन भली काम देइथिला एवं एहा वाणिज्यिक प्रत्यावर्तन जहाँकि यूरोप रे देखा जाइथिला केबे ना एकादश शताब्दी परठार सेतिरे गोटे बड़ भूमिका माने ग्रहण करथिले किए किए ना मध्ययुगीय सहर आउ सुदूर वाणिज्य ठीक अच्छे वाणिज्य व्यवसाय एटा हूँ पिरानक कथा द इनिशियल आर्गुमेंट्स ऑफ Morris Dove that the rise of medieval towns and the growth of markets had exercised a disintegrating impact on the structure of feudalism and prepared for the growth of forces that weakened and supplanted it. Morris Dove कहते जे जो मध्ययुगीय सहर गुड़िकर जो उत्थान है सेटा किमती है ना जेतले हमर जो फ्यूडालिज्म रा डिसइंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो डिसइंटीग्रेटिंग बा पतनोन्मुखी जो कारण गुड़िक सेते बेले गोटे बड़ भूमिका ग्रहण करिथिला ए सहरर उन्नति पाई कहूली जे एक्चुअली the disintegration or decline of feudalism led to the establishment of capitalism. आर पतन माने फ्यूडालिज्म रा पतन आर जो कौन था ना हाँ पूंजीवाद उत्थान पाई रास्ता जोगे देथिला बा इट paved the way for the establishment of capitalism in Europe. The decline of feudalism led to the establishment of capitalism in Europe. So the in response, Morris Dove argued that the rise of medieval towns was a process of internal to feudal system. And highlighted the incapacity of feudal social relations to contain the process of petty production and exchange that feudalism itself generated, and showed this process to be a struggle of different groups within the feudal order to dominate small-scale production and to appropriate profits of trade. Suizi जोटा को कहते so anyway मोरिस डव आर्गुमेंट करती जे ए जो मध्ययुगीय सहर गुड़िकर उत्थान गोटे प्रक्रिया थिला एक माने आभ्यंतरीण प्रक्रिया थिला कहार ना फ्यूडल सिस्टम रा सामंतवादी प्रथार ठीक अच्छे एवं एहा हाँ सामंतवादी प्रथार एटा गोटे आभ्यंतरीण पार्ट थिला गोटे प्रक्रिया थिला जो थे तुम कही जे छोट छोट प्रोडक्शन जो माने आसीगले मुक्त होई से माने सहर रे किछि ना किछि काम कले निजर आइदर किछि प्रोडक्शन कले किंबा का पाखर रही कि किछि काम आरंभ कले एवं एथरे कौन हैला ना डिफरेंट ग्रुप्स रा बा जो बा विभिन्न ग्रुप रो
क्रिएशन है गोटे ग्रुप गोटे जिनस गोटे प्रकार जिनस प्रोडक्शन कला आ गोटे ग्रुप आ गोटे प्रकार जिनस माने तैयारी कला कि जब सो प्रोडक्शन ग्रुप सो दे डोमिनेट द स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ठीक है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन तुम कहली छोटे छोटे जिनस मध्ये से माने आरंभ कले तापरे वाणिज्य को एंड टू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट्स ऑफ ट्रेड सो तापरे कोन हला ना जो ट्रेड बणी माने वाणिज्यर गोटे प्रॉफिट आसिल एगुड़ा को जो तैयारी कले ताको बिक्री कला फल रे कोन हला ना प्रॉफिट आसिला जोटा कि समान को समृद्ध करेथिला so he perceived medieval towns as oases in a rather unfree society that acted as magnets of freedom for the pressurized and exploited rural population making them migrate to towns जोटा तुमको मु कहउतली आगुरु जस्ट किछा पूर्वरु जे जो मॉरिस डॉब से चिंता करले जे से तांकर आर्गुमेंट रोची जे जो मध्ययुगीय शहर गुड़िक यूरोप रे पर्टिकुलरली इट एक्टेड एज ओएसिस कौन बुझन रे जो हमर मरुभूमि रे गोटे गोटे जगह रे जो मरीचिका जो हम देखंता पर जो हमर जो पानी फानी थाए सही जगह रे सेठी हमको सेटा ये ओएसिस टाइप रो काम कला जहा कि ए जो लोक मान जो माने फ्रीडम पाइले सेटू पळे आसी कि जो माने प्रेशराइज्ड हे थिले तांका अंडर एका फ्यूडल लॉर्ड का अंडर जो शार्प माने बा भूमिकृत दास माने से माने ए जो स्वाधीनतार चुंबकीय शक्ति द्वारा से माने उत्साहित हो पळे आस्थिले एवं ए जो लोक माने मध्य एक्सप्लोइट होथिले बा रूरल पॉपुलेशन जो हम एठी तुम से टर्म दा दियानी जो शार्प माने बा भूमिकृत दास माने एक्सप्लोइट होथिले का द्वारा ना फ्यूडल लॉर्ड का द्वारा से माने माइग्रेट करले कोठी की ना टाउन को माइग्रेट करले ता फल रे संख्या मानकर बड़ी बड़ी चल ठीक अछि so historians realized that there were different types of medieval towns that emerged in the west and that were not of the same economic and political value in effecting the transition from feudalism historian माने तांकर मत रहला जे ऐतिहासिक मानकर मत होउची जे जो मध्ययुगीय शहर गुड़िक जो पाश्चात्य जगत रे गढ़ी उठिला तांकर जो अर्थनैतिक एवं राजनैतिक वैल्यू सेटा कौन हैला ना सामंतवाद रु पूंजीवाद को जो परिवर्तन हैला सेथिरे गोटे प्रमुख भूमिका ग्रहण कला Straight jacketing the medieval towns into one category has proved to be erroneous. Henry Pirenne identified two different categories of medieval towns. A town of Leeds type, second, those of Flemish type. So Henry Pirenne identify करछन जे एथरे दीटा प्रकार कैटेगरी देखाउतले medieval town रे गोटे थिले सर लीगी टाइप it's a place in Europe and also Flemish. It's a the Flemish term has been derived from the word Flander. Flander is a city. So Flander was a wealthy city at that time in Europe, particularly in medieval Europe. So it did a prakar sara development. The Leasy type of town was primarily political or seat of bishop of or of his court, where the main people were ecclesiastical gentry, administrators with a few artisans and servants providing them with finished goods. Leasy type of town काहा को हमें कहबा
ना जोटा कि प्राइमरली गोटे पॉलिटिकल सीट थिला बा सेठी राजनैतिक व्यक्ति रहउथिले किंबा बिशप रहउथिले बिशप के जंच क्रिश्चियन जगतर से धर्मगुरु सो से रहउथिले किंबा तांकर कोर्ट रहउथला बहुत political person means be it king or something like that ଏବଂ କିମ୍ବା ବିଶପ ଯଦି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ଥିଲା ସୋ ଲିଜି ଟାଇପ ଅଫ ଟାଉନ ରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲିଜି ଟାଇପ ଗୋଟେ ଲିଜି ଗୋଟେ ଟାଇପ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସହରର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସୋ ଦିଟା ଟାଇପ ର ସିଷ୍ଟମ ଟା ଚାଲିଥିଲା सो एनीवे सो लिजी टाइप रे जहाँ कहली एटा जो गोटे पॉलिटिकल सेंटर थिला बा इट वाज ए सीट ऑफ बिशप थिला बा और हिज कोर्ट जोउतरे कि केते जण माने अल्प किछि आर्टिजन्स बा कारीगर एवं सर्वेंट सेवक एमाने कोन करथिले ना सेवा जगुथिले काहाकू ना एई जो राजनीतिक व्यक्ति मानन बा ए सॉरी एमानकर मूल काम कौन थिला ना एक्लेसियास्टिकल जंट्री बा जो धर्म संबंधी जिनस जो प्रवचन हो कि जहाँ भी धर्म संबंधी काम जोटा बिशप करुले एडमिनिस्ट्रेटर्स जो माने शासन करता सो से माने मध्य तांकू नै कि अंकर ए जो लिजी टाइप ऑफ टाउन टा एस्टैब्लिश हेतला सो सेतरे ए जो आर्टिजन्स माने किछि आर्टिजन्स आ किछि सर्वेंट्स तांकू फिनिश प्रोडक्ट्स बा किछि माने जिंस जोग देथिले तांका सेबारे द फ्लेमिश टाइप ऑफ सिटी वाज प्रिंसिपली एन इकोनॉमिक यूनिट which was ruled by a wealthy oligarchy consisting of rich merchants, merchant magnates of and financial families. So Flemish type टा कौन थिला ना एटा थिला जो particularly आमे बड़ा बड़ा ट्रेडर्स कथा कहबा किंबा कैपिटलिस्ट कथा कहबा सो एमाने गोटे बड़ा ग्रुप सो एमानकर गोटे इकोनॉमिक यूनिट थिला एटा गोटे इकोनॉमिक यूनिट प्रिंसिपली फ्लेमिश टाइप वाज फ्लेमिश शहर टाइप शहर थिला किमतिका ना गोटे अर्थनैतिक केंद्र जो थे कि किछि धनी व्यक्ति शासन करुले एवं सेमाने परिवार ठीक है these towns took origin along the channels of long distance trade and were located outside old Roman settlements as well as ecclesiastical townships and feudal fortifications. ये जो फ्लेमिश टाइप ऑफ सिटी ठीक है फ्लेमिश टाइप ऑफ सिटी एगुडा कोटी एस्टाब्लिश करथिले माने एमाने एमानकर काम थिला लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बा सुदूर वाणिज्य व्यवसाय रे माने लिप्त थिले এবং এমানकर রইবার স্থলীটা সাধারণত দেখা যাউতলা যে এমানে পুরুনা रोमन सेटलमेंट रे रहिबा को इच्छा करन बा जे कोन रोमन रोम को छाडी के अलग जगह रे सेम सिस्टम थिला जे एमानक पाखरे जते पैसा पत्र हैला एमाने गोटे बुआ जगह रहिबा को इच्छा कले गोटे बड़ स्पेसियस जगह आउ से फोर्ट गुडा को तत्कालीन दुर्ग माने जो मिडाइवल फोर्ट गुडा को अति कदर्य थिला तार से जो सामंत माने रहउथिले सेथिरे माने बहुत बहुत उच्च थिला बहुत माने रूम गुडा को छोट छोट थिला एवं सेठी झरका बेसी नथिला जा फଳରେ कि माने निश्वास प्रश्वास नबारे भी लोकों को असुविधा होतला बा सफोकेटेड फील करथले सो यही जो ट्रेडर्स माने माने कोन कले ना समान को बाहरे जाई कि नुआ घर तयारी कले ए जो सिटी गुडी का एस्टैब्लिश कले एवं the inhabitants of such cities lived by trade making them evolved at the base of the new anti feudal ruling class so ए जो एमाने कोन हले ना दे आर एंटी फ्यूडल माने सामंतवादी शासक गोष्ठी विरोधी माने एमाने गोटे मुक्त जीवन बितेबा को चाहे जदि आमे
गोटे सहर कथा आलोचना करिबा गोटे गोटे सहर देखियो क्लमजी बहुत क्लमजी आ गोटे गोटे टेक फॉर एग्जांपल दुईटा सहर हम ओडिसा रे नबा गोटे रहउची कटक गोटे रहउची भुवनेश्वर किबा अलग जो सहर गुडे के प्लांट सिटी अनुसार प्लानिंग अनुसार होउची से कथा देख कटक रे रास्ता गुडी के बहुत न्यारो काई ना आगुरु पुराना सिस्टम रे गढ़ा है आगुरु राजा माने धवल टगर से गुटे हमर जो टर्म अछि सो एनीवे मो कहवा कथा होची कटक इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया सो सेठी सिस्टम ता अलगा किंतु भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी ता तार माने तार रास्ता चौड़ा सबू इट वाज ए प्लांट सिटी सो सेठी लाइफस्टाइल अलग कटक रो लाइफस्टाइल अलग काल तुम से कथा कहथि सो ए जो लोक माने किछि लोक पसंद करि नथिबे जो माने ए काई के क्लमजी एरिया रही काई गोटे भलो जगह को नजी से बड़ा चिंता धारा रे मध्य से बड़ी ए जो मध्ययुगीय यूरोप रे ए जो बणिक माने तत्कालीन सामंतवादी राजा मानक विरोधी होई ताकू छाड़ी माने नुआ सहर सब एस्टाब्लिश कर फर्नार्ड Brodel says that there were three basic types of towns in the course of their evolution. फर्नार्ड ब्रॉडेल के मतरे तीन प्रकार सहर थिला ए जो सहर रो हमें यदि इवोल्यूशन कथा कहबा बा विवर्तनवाद कथा कहबा जे तीन प्रकार सहर कथा होछ गोटे कोन वन open towns which were not differentiated from their hinterland and were at times blending into it as we were seen in ancient Greece and Rome. Open town कथा से जोटा कि ancient Greece आओ रोम ठार बेसी भिन्न नथिला in the open towns sizable amount of power remained with the structures of agrarian world. The second type consisted of closed towns, which were self-sufficient units and closed on themselves in every sense, and the walls of these towns marked the boundaries of an individual way of life more than a territory, as we see in case of medieval town. एटा थिला गोटे थिला ओपन टाउन आ गोटे थिला क्लोज टाउन माने जिंती हमर सामंत राजा माने रहउथले तांको फोर्ट भितरे फोर्टा बड़ होई थिला तार भितर सब लोक माने रहउथले तारी भितरे समानंकर दे वर सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स स्वावलंबी थिले जा प्रोडक्शन करथले तांकर भितरे खाउथले पिथले रहउथले एवं तांकर भितरे सब प्रकार लोक रहउथले से गोटे जागा रे ठीक अछि सो छवाने बाहर का सहित किसी संपर्क रखुनथले का सहित माने बाहर लोकन सहित किसी तांकर संपर्क नथला द मोमेंट ए peasant fleeing from the seigneurial servitude crossed the ramparts of the medieval town and entered the walled space of time walled space of town, and he got relieved of his servitude and became free, and the seigneurial lord could not touch him. जो कथा कि समय पूर्व तुमको आलोचना करूथली जे सेते बेले गोटे सिस्टम थिला जे जो माने छाड़ी की पड़े बा लुचि की पड़े से माने कौन करूथले ना जाई कि कोठे रह जाउथले ए सहर रे थिबा सहर रे जो थिबा ए जो एमानक पाखरे धनी लोक पाखरे रही जाउथले परवर्ती समय एमाने तांको टच करि पारु नथले को माने ना सामंत राजा माने हम कहउतली जे धनी लोक हे जाउथले को माने जो ट्रेडर्स माने समान बड़ बड़ माने घर बड़ एरिया से घर करुले तो ता भितर को काकू एंट्री मार दे नथले एमाने गले ए माइग्रेंट रुचि पड़ी आसले जाई ताका घरे सर्वेंट हे कि रहले ए लाइफ टा बेटर थिला देन द लाइफ ऑफ than the life under the feudalers
এই जो जीवन सेफ जीवन था बेटर थिला the third type of the third type consisted of the subject towns which are held in the gamut of subjection by prince and state, as in the case of early modern towns like Florence, that the Medicis had subjugated, or Paris that the Bourbon rulers kept as their captive. ଆଉ ଗୋଟେ ସହରର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ସହର କଣ ଥିଲା ନା ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୁବରାଜ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା। पर्टिकुलारली ଆମେ फ्लोरेंस କଥା କହିବା। फ्लोरेंस रे मेडिसी गोटे थिले ट्रेड फैमिली, दे आर द फेमस ट्रेडर्स फैमिली इन यूरोप। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲେ बॉर्बन रूलर्स। बॉर्बन एक्चुअली बॉर्बन मध्य गोटे ट्रेडर थिले, परवर्ती स्टेज रे सेमाने मध्य दे बिकेम ए रूलिंग क्लास। आज मध्य तुम कहूँ आज का डेट रे मध्य जो कॉर्पोरेट सेक्टर कथा कहूँ जो माने ट्रेडर्स कथा बड़ा बड़ा ट्रेडर्स, दे आर द रियल पॉलिसी मेकर्स। से माने होचंती पॉलिसी मेकर्स सबु गवर्नमेंट रे। इट इज नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, सबु गवर्नमेंट रे ए माने ही बड़ भूमिका ग्रहण करंती। ए माने देश को गोटे पर कहले चलांती कहले चले। केते असुविधा हेले गवर्नमेंट सेमानक पाखर साहाय्य मध्य नियंती। ठीक अछि, इकोनॉमिकली दे आल्सो हेल्प द गवर्नमेंट। सो ए जो कथा पड़ी थिला, सो दिस इन फ्लोरेंस द मेडिसिस हैड सब्जुगेटेड, जो माने मेडिसी फ्लोरेंस रे मेडिसी फैमिली कंट्रोल रे रखथिला शहरटी। से बड़ी पेरिस ताको बर्बन रूलर्स माने निज परायतर रखथिले। द क्लोज टाउन्स or the mercantile towns were viewed as having caused the Western Europe to advance economically. जो क्लोज टाउन हो कि मर्केंटाइल का टाउन्स हो, सो जो वाणिज्यिक शहर हो, सो ये जो वाणिज्यिक शहर बा जो क्लोज टाउन एमाने कौन कले ना यूरोप रे अर्थनैतिक प्रगति रे सहायक होती। ठीक है। As one of the important makers of which by which a town is distinguished from the countryside is the nature of division of labor. ଯେତେବେଳେ ସହର ଗଢି ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା लेबरଙ୍କର ବିଷୟ division of labor create ହେଲା। Historians have been looking at the labor processes in medieval towns as well. ऐतिहासिक माने लेबर प्रक्रिया जो मध्ययुगीय शहर गुड़िक जो लेबर प्रक्रिया टाक श्रमिक प्रक्रिया टाक देखा लगे। सब विभिन्न प्रकार जो श्रमिक श्रमर विभाजन देखा देइथिला। द थियोरेटिकली फर्नांड ब्रोडेल agrees that the merchants, the functions of political, religious, and economic control, and the craft activities would go over to the town side. He views that complete span of these professions was seen only in big towns and not in small towns, where the manpower was limited. तत्व दृष्टि फर्नांड ब्रोडेल माने तांकर मत ऐक्य रही जे यही मर्चेंट मान बणिक मान राजनैतिक तार जो फंक्शन पॉलिटिकल फंक्शन धार्मिक एवं अर्थनैतिक नियंत्रण एवं विभिन्न कारीगरी कुशलता बा कारीगरी कर्म ये जो शहर गुड़िक देखा मिलता। उभय बड़ सहर एवं छोट सहर रे। ठीक अच्छे। सो एथिरे where the manpower was limited,
जोटी की मैन पावर कम थे. In fact, the labor process of medieval towns was not so intense and complex as we find in the modern cities, which rose with industrial capitalism. କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇ ଯୋଉ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନଥିଲା ଏତେ ଘନୀଭୂତ ନଥିଲା ଆଜି ଯେପରି ଦେଖାଯାଇଛି. ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କର ତମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲ ଯିଏ ଯୋଉ ସହରରେ ରହିଛ ସେ ରାଉରକେଲା ହଉ ସେ ବିଟ୍ just think about that in your childhood if you are living in beat Raurkela, beat Bhubaneswar, beat Cuttack, beat anywhere, any city, not anywhere, any city you are living, think what sort of city was at your in your childhood and how it has been changed into right now. କେମିତି ଏଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବେକା ଯୋଉ ସହର ଦେଖୁଛ ଛୋଟ ବେଳେ ଯୋଉ ସହର ଦେଖିଥିଲ ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ନା ଆସିନି? yes or no? yes. so ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି. ଠିକ ଅଛି. moreover unlike the medieval cities, the type of social trends that appeared with industrial capitalism necessitated the emergence of planned cities of modern period with a fixed pattern of policing, street plans, earmarked spaces of stores, transport lines, labeled and segregated neighborhoods, configurations of political power, specific rules related to hygiene and health care, etc. जो मध्ययुगीय सहर भली जो पुराना सहर थिला ता भली नुहे बरं गोटे नुआ ट्रेंड देखिया मिलला गोटे सामाजिक परिवर्तन देखा मिलला कोटी नुआ सहर गुड़िक ये नुआ सहर गुड़िक जो कैपिटलिज्म रा पुंजीवादर डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म पर्टिकुलरली शिल्प पुंजीवाद सो ता फल रे कौन है ना गोटे आधुनिक जुगरे ये प्रवेश करे गोटे फिक्स्ड पैटर्न पॉलिसी रे पॉलिसी रहिला से सहर पाई प्लान तैयारी हला सेतिरे स्टोर हाउस मध्य रहिला. ठीक अच्छे. ट्रांसपोर्ट लाइन्स रहिला जे हमर गोडाउन कथा स्टोर हाउस माने एटी गोडाउन कथा हम कहबा ट्रांसपोर्ट लाइन रहिला सब रास्ता परिवहन रो व्यवस्था करा गेला एवं राजनीतिक केंद्र भली एटा कार्य कला सहर गुडी. so एवं specific rules and regulations were made for health and hygiene स्वास्थ्य पाई परिमल व्यवस्था पाई किसी नियम मध्य रहिला. सो ये सब जिनस वर्तमान सहर देखा गला जहाँकि पुराना सहर गुड़िक देखा जाऊ नथिला. ठीक अच्छे. तुमको कटक भुवनेश्वर कथा डिफरेंस देखुली कटक ठारू भुवनेश्वर अधिक स्वच्छ माने सफा सुतरा परिष्कार जो गुड़ा प्लांट सिटी राउरकेला से चकाचक सहर सो जो गुड़ा प्लांट सिटी सेठी नियाती सुविधा रहे जो गुड़ा अनप्लान माने ठीक से प्लान है नहीं सेठी ठिकाना है परिवो नहीं. ठीक अच्छे. Recently, there have been attempts to look at medieval cities from the perspective of cultural formation and introduce urban identities and city forms as cultural constructions, which are being recurringly refashioned and modified. ଏବେ ଆମେ ଏ जो medieval cities कथा आलोचना करुଥିଲେ तो यही जो मिडाबल सिटी गुड़िक कौन है ना दे बिकेम
सेंटर्स ऑफ कल्चर तुम कहूली जे ये कल्चरल फॉर्मेशन करागला अर्बन सेंटर गुड़िकरे बा सहर गुड़िकरे कहीं तुम कहली जमी आमर तुम कहली जे टेक फॉर एग्जांपल भुवनेश्वर इज कॉल्ड एज द टेम्पल सिटी you will find hundreds and hundreds of temples in Bhubaneswar. The urban communities से जो सहर गुड़िक संस्कृतिर प्राण केन्द्र है कारण बहुत लोग ये आसिले सहर राजा मान रहिले शासक वर्ग रहिले तेणु से संस्कृति कूटा संस्कृति को बंचे रखिले ये कि गोटे नुआ संस्कृति गढ़े द अर्बन कम्युनिटीज आर स्टडीज थ्रू देयर कल्चरल फॉर्मेशन थैंक्स to their participation in community movements, confrontations with alien cultures, formation of plural societies, dual or multiple loyalties and multiple affiliations. एड़ा कहीं खेला ये जो अर्बन कम्युनिटी का जो कल्चरल फॉर्मेशन कले बा सांस्कृतिक गठन प्रक्रिया कले एटा कौ जो आरंभ माने हेई परला ना कम्युनिटी मूवमेंट जो सब विभिन्न प्रकार कम्युनिटी रे लोक आसिक रही ठीक है सहर गुड़ी करे हिंदू रहिले मुसलमान रहिले ख्रिस्टियन रहिले अलग धर्मावलंबी रहिले सिख रहिले समस्त धर्म लोक रहिले एठी मध्य बाहर लोक आसिक रहिले फॉरेन लोक आसी मध्य रहिले गोटे एलियन कल्चर सृष्टि है सहित आमे फॉलो कले सी आमको फॉलो कले ठीक अच्छे टेक फॉर एग्जांपल आज आमे जो एमरे जो एठी इस्कन वालांकर जो महिला मान देखियो महिला भक्तों कथा से माने साड़ी फाड़ी पिंधिकी बुलछन तो डोंट टेक इट अदरवाइज so it is just for study just for learning learning sake I am telling I don't want to hurt the sentiment of any lady particularly. So they are wearing sarees, but we had forgotten our own culture. They are accepting our culture nowadays. The Western people are accepting our culture, and we are accepting their culture. We are accepting their dress patterns, bikinis, wearing bikinis. Anyway, so this is an alien culture. This is not exact culture of India. Formation of rural societies. So कहते जो विभिन्न प्रकार लोक रहिले विभिन्न प्रकार समाज रा लोक एठी बसवास कले एवं एठी विभिन्न प्रकार लोकंकर लॉयल्टीज रहिला राजनैतिक व्यक्तित्वଙ୍କ प्रति तांकर कर्म करुवा लोकंक प्रति रहिला जो हमर ट्रेडर्स माने टेक एठी केस रे हम ट्रेडर्स कथा कहू सो तांकर मल्टीपल एप्लीकेशंस रहि सेही जोगु कोन हैला ना हमर कल्चरल फॉर्मेशन बा सांस्कृतिक केंद्र है what so let me know one thing what do you mean by culture कहले हमें कौन बुझे किए कहबो who can say what is culture anyone of you no. So let me tell you that culture is a way of life the things that were going on is going on and will be going on is we can say it as culture. Culture is a process of life means the traditions the customs that were observed by the people then people means in prior to our generation that is being observed by us
and will be observed by our future generations. That we can say culture. Be it festival, be it food pattern, be it any type of thing, be it a dress, be it music, song, anything, sorry, music, dance, whatever we see, whatever we use, whatever we think also, that comes under culture. Everything comes under culture. Culture is dynamic, it is changeable, it changes according to the need of the man, according to the need of the society. ସଂସ୍କୃତି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଜି କେତେ ଆ ଭିତରେ କେତେ ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ସଂସ୍କୃତି ନୂଆ ସଂସ୍କୃତିର ଗଠନ ହେଇଛି। ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଥିଲା ସେ ସବୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଉଛି, ହଜି ହଜି ଯାଉଛି। ଯୋଉ ବାପା ଆମର ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ମାନେ ସରି ଆମର ଯୋଉ ଟେକ୍ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବିଭିନ୍ନ ପିଠାପଣା କଥା କହିବା। ସୋ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆମ ଜେଜେମା ଜେଜେମା କିମ୍ବା ମା ମାନେ ଯାହା ସବୁ ତିଆରି କରିକି ଦଉଥିଲେ ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପିଠାପଣା ଆମେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। କିମ୍ବା ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମକୁ ଆସୁନାହିଁ, ଆମେ ତା ଦେହରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ପିଠା ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଗରୁ ପିଠା ଖାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଘରେ ପିଠାପଣା ହଉଥିଲା। So ebeka generation, now the generation want the pizza, burger and all those things instead of taking homemade cake or homemade food. ଆମେ ସେ ଯୋଉ କ'ଣ ଚାଇନାର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କ'ଣ ଯୋଉ ଚାଉମିନ ଫାଉମିନ, so that thing we want to take in a convenient manner rather than taking the traditional food which where our parents or mother prepares for us. So anyway, uh, historical geographicus argues that, sorry, spatial studies got significant attention to the works of Michel Foucault, Henry Libre, Edward Souza on the production of space. Historical geographers argue that spatial process is something that happens not by accident, but with definite purposes and logic. They view that space, particularly urban space, is intentionally charged with meaning and show the ways how meanings of power and dominations are inscribed into urban space. Spatialization focuses on space as fundamental variable influencing both society's organization and operations as well as the behavior of individual members. This type of study emerges from the assumption that man makes imprints on geography in the material process of existence by repeated modifications in the landscape, and that by a historical study of landscape one can decipher the context of human activity and can trace human thought behind it. So geographical aspect plays a significant role. So ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ବା ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ମଣିଷର ଜୀବନ ଉପରେ, ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ, ଠିକ ଅଛି। ଆମ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଅଲଗା କାଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଠିକ ଅଛି। What we think is not the same as the people of Kashmir think. So what the people of England think, what the people of France think. So there will be differences. So historical geographers and historians now make distinction between private and public spaces, sacred and profane spaces, commercial and ceremonial spaces, shared and divided spaces, male and female spaces, individual and institutional spaces, and they realize that spaces are contested resources which individuals and groups seek to
control as demonstration of their own power. So historical geography ऐतिहासिक भौगोलिकविद एवं ऐतिहासिक माने समाने कौन करछन समाने कहले जे जो डिस्टिंक्शन अछि प्राइवेट आउ पब्लिक स्पेस भीतर sacred और प्रोफान स्पेस भीतर कमर्शियल और सेरेमोनियल स्पेस भीतर शेयर्ड और डिवाइडेड स्पेस भीतर मेल और फीमेल स्पेस भीतर सो ए सब माने पुरुष नारी होंतु पवित्र अपवित्र जिनस हो सब आमर आम सब जिनस गोटे माने कौन कहते स्पेस अर्थात जो ब्लैंकनेस बा शून्यता आम देखि पार गोटे गैप से देखि पार sociologists and urban historians maintain that a study of the process of urbanization has to focus on variables of population, social organization, physical environment and technology. समाज तत्वविद एवं शहरी ऐतिहासिक माने मत व्यक्त करती जे ये जो शहरीकरण अध्ययन प्रक्रिया कहा पर डिपेंड फोकस करुचे ना वेरिएबल्स ऑफ पॉपुलेशन केते लोक रही ठीक है एंड द एनवायरनमेंट सॉरी एवं केते लोक वेरिएबल्स ऑफ पॉपुलेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संगठन कौन अच्छी एवं फिजिकल एनवायरनमेंट किपरि अछि टेक्नोलॉजी किपरि अछि प्रजुक्ति विद्या किपरि अछि से कथा मध्य जो शहरीकरण अध्ययन देखई था यार मोर मेन फोकस है एगुड़ी को द प्रोसेस ऑफ अर्बन मॉडिफिकेशन begins when the changing social organization and technological innovations mediate in urban space in such a way that balance between the population and the environment gets changed. से कहते जे एई जो मॉडिफिकेशन प्रक्रिया अर्बन मॉडिफिकेशन बा शहर जो परिवर्तन जो प्रक्रियाटा इनके स्टार्ट होची ना हमरा सोशल ऑर्गेनाइजेशन रे परिवर्तन आसुची सामाजिक संगठन रे परिवर्तन आसुची टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस रे परिवर्तन आसुची ता फल रे हमरा पॉपुलेशन परिवर्तन आसुची एनवायरनमेंट रे परिवर्तन आसुची जेते बेले समाज स्तर रे आमे गोटे पुराना जिनस को छाड़ुचंती नुआ जिनस को ग्रहण करुचंती टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बा प्रजुक्ति विद्यार जो नुआ नुआ तथ्य आमको परिवर्तन करा आगुरु टेक फॉर एग्जांपल हमें आगुरु कोथरे चलतले जेतले मोबाइल फोन आसे नथला सेही छोटिया फोन बा जो 2000 मसिया कथा जदी कहबा तो सेतले 19 पूर्व तो ओडिसा टे ओडिसा कथा नबा तो ओडिसा तो मोबाइल नथला से हेतु बेले केवल दीटा लोक जो 19 बात्या बेले केवल चीफ मिनिस्टर पाखे थिला आ गोटे का बाहर ए जे जाओ सो मु से बेलार छोट मोबाइल कथा कहूँ एबे कार जो हैंडसेट कथा कहूँ सेते केवल खाली आम कथा हो पारे कथा कथा हो पारे आ मेसेज दे पारे ठीक अच्छे कि बर्तमान multifaceted use of this mobile. It is just working like a computer, supercomputer कथा जन कह पारे गोटे छोट मोबाइल हैंडसेट इट वर्क्स इन डिफरेंट वेज आम वीडियो कॉलिंग कर पार्टी कथबार्ता हो पार्टी पढ़ुं सब किसी कर पार्टी केवल तार माध्यम थिला से जो परिवर्तन आसला ए टेलीकॉम सेक्टर परिवर्तन आसला समाज रे से अनेक जिनिस आम छाड़ुचंती अनेक नुआ जिनिस ग्रहण करुचंती आग काल लोक धोती कुर्ता पिंधुले एवं कौन से पिंधुं ना आम ता भर परिवर्तन आगुरी झील केवल शाढ़ी पिंधुले एवं विभिन्न प्रकार ड्रेस पिंधुं परिवर्तन आसी तेणु ये जो मॉडिफिकेशन आसुच्छा टेक्नोलोजी जो मोबाइल कथा कहले आगुरी लोक जीवा आसवा हैरान होता कि गोटे लोक कथा हाँपाई से जगह को जीवा पड़ता ठीक अच्छे एवं आगु क्या गोटे बाघर कार्ड देवाई तुम कौन कर ना जीवा पड़ता जहाँ बाध्य तमें
गोटे कार्ड नहीं कि घर नहीं कि देकी आसब एबे किछि नहीं सीधा फोटोटे उठेल छाड़देल कौन ग्रुप रे कि ता भितर ताक पठेदेल है वीडियो कॉलिंग कहीदेल आ जावा दरकार भी नहीं ठीक अच्छे सो यहाँ हूँ टेक्नोलोजिकल इनोवेशन जोटा कि परिवर्तन आम सोसाइटी ठीक अच्छे लाइफस्टाइल से भाया चेंज हो जाए The societal process emerging out of it causes various types of structures to appear in the urban space. So, ये जो structure अच्छे हम society सेटा कौन रोची ना urban space जो बा जो शहर करण जो ये सब परिवर्तन होची शहर रे जहाँ करचोदी ताकू लोक गाँव रे फॉलो करचोदी हना नहीं आमे एठी जहाँ होची शहर रे सॉरी शहर रे जहाँ करूचंती जिमिति लाइफस्टाइल जिमिति हेयर स्टाइल बर्तमान करूछन सहर पिला गाँव मध्य सेम टाइप रो जिनस होउछ हना नहीं गाँव रे से बुला देखि जिमिति हेयर स्टाइल टिकार सहर रे पिला करूछन सेठी से बुला गाँव रे मध्य कला सो हमर स्टाइल सब जिनस चेंज होउछ एटा जस्ट एग्जांपल आकार रे मु कहली सो स्टैनली के सल्स he says that for understanding the nuances of urbanization process, one should analyze such aspects like size of population concentration, rural migration patterns, fertility mortality ratios, rate of literacy, etc. So under the category of population and the type of geography chosen for habitation as well as the physical spacing and distance of communities within that geography should be examined to get a picture for the urban environment with which the urban dwellers are interacting. So यही प्रक्रिया रे कौन है ना स्टार्लिंग मतरे ये जो अर्बन शहरीकरण प्रक्रिया रे हम केतरा कथा देखियो कौन कौन ना साइज ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन गोटे शहर रे केते लोक रहउछन हैला रूरल माइग्रेशन पैटर्न्स शहर गाँ रु शहर को केते आसजन गाँ सॉरी शहर रु गाँ को केते जाउछन एक्चुअली जी गाँ रु थरे आइला आ शहर को आसिला आ से गाँ को गला ना ताक तो भल लागिला नै एनीवे सो ए जो पैटर्न कथा से माइग्रेशन कथा कहउछंती किमिते स्थानांतरीकरण होउछंती लोक ता ऊपर मध्ये देखिबा को अछि ठीक अछि तापरे आ कोन को की तुमको हां अंडर सब फर्टिलिटी मोर्टालिटी रेशियो केते अछि माने केते लोक मरुछन रेट ऑफ माने केते पिला जन्म होछन केते पिला मरुछन से कथा को देखिबा को अछि रेट ऑफ लिटरेसी एटसेट्रा सो हमर जो रेट ऑफ लिटरेसी केते रहै अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन सो एही हिसाब रे हमें गोटे शहर को तार शहर को बाछिया को पड़िबो शहर को विषय से विषय में आलोचना करिया बोले एही गुडिक दिग प्रति हमको देखिया को पड़िबो सेटिका पॉपुलेशन केते लोक रहउछंती रूरल माइग्रेशन सो ताकू देखिया को पड़िबो मोर्टालिटी रे फर्टिलिटी और मोर्टालिटी रेट देखिया को पड़िबो इत्यादि कथा रही छै in order to understand the nature of mediation done by technology in urban space, one should also analyze the nature of communication lines, mode of transportation, as well as informational network and the nature of social organization is better understood. Urban communities, besides non-agricultural enterprises, diversity of occupational structures, method of recruitment for employment and nature as well as means of economic exchange, etc. आमे जदि अर्बन स्पेस रे बा शहर रे
टेक्नोलोजी रो मेडिएशन कथा आमे आलोचना करिबा सेतेबेले केतरा कथा हमकु देखिबा पड़िबो गोटे होची कम्युनिकेशन लाइन नेचर ऑफ कम्युनिकेशन लाइन्स हमर जो कम्युनिकेशन सिस्टम जोगाजोग व्यवस्था तार से की प्रकार अछि तार प्रकृति कौन ताकू देखिबा पड़िबो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन as well as informational network ट्रांसपोर्टेशन मोड केमती अछि रेलवे कि हमरा गोटे शहर को रेलवे अछि कि नहीं कि हमरा लैंड रूट रे किछि अछि कि नहीं एयर रूट रे किछि अछि कि नहीं वाटर रूट रे किछि अछि कि नहीं से भलिया गुडा मध्ये देखिबा पड़ियो ठीक अछि ता छडा इनफॉर्मेशनल नेटवर्क हम जो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अछि सेटा केते अछि ताकू मध्ये देखिबा पड़ियो एंड द नेचर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए जो आ गोटे सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रकृति किपरि अछि ए सब गुडी को देखिबा पड़ियो ता सहित देखिबा पड़ियो ए जो पावर ग्रुप रही छथि अर्बन कम्युनिटी के भितरे सेमानकर स्टेटस देखिबा पड़ियो आउ नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस रे केते लेबर फोर्स बा वर्क फोर्स काम करूछंती ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर रो विविधता ताको देखिबा पड़ियो ठीक अछि एवं मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट की बड़ी भाबरे हमर नियुक्ति दिया जाउछ ता कथा आलोचना करियो एवं अर्थनैतिक नेण देण किपरि चालिछ तार अर्थ मध्य बुझिबा को पड़ियो then perceptions on medieval Indian cities a vibrant academic debate on medieval Indian cities was inhabited by Muhammad Habib is a famous historian of medieval India with his argument on the sudden spurt of labor forces in northern India, followed by an urban revolution triggered off by the conquest of Muhammad Ghori. However, he attributed the commencement of this labor process to an external factor, that is, political conquest by Muhammad Ghori. मध्ययुगीय भारतीय सहर उपर यदि आम आलोचना करवा एथिरे आमे मोहम्मद हबीबंकर जुक्ति को ग्रहण करिया को पड़िबो मोहम्मद हबीब हेउचंती मध्ययुगीय भारतीय इतिहास रे जने प्रख्यात ऐतिहासिक विशेष करी से मुसलमान शासक भारतर मुसलमान शासक मानक ऊपर अनेक पुस्तक रचना करिसेंती मोहम्मद हबीब तांको पुओ होचंती इरफान हबीब he is now also a great historian of great Muslim historian of India तांकर लेखा मध्य बहुत उच्च कोटिर मोहम्मद हबीब तांकर बाप सो जा हो सो से आर्गु करूछंती जे ए जो लेबर प्रोसेस टा कोटी आरंभ होला ना नॉर्दर्न इंडिया जो ठीक गोटे अर्बन रिवोल्यूशन देखाइतला केबे ना मोहम्मद घोरीकर आक्रमण पर मोहम्मद घोरीकर विजय परे ई अर्बन रिवोल्यूशन बा सहर विप्लवर आरंभ होइतला however he attributed the commencement of this labor process to an external factor, that is political conquest by Muhammad Ghori. से कहले जो लेबर प्रोसेस टा एक्चुअली आरंभ होची एटा बाहिक घटना एवं एटा केबे हला ना मोहम्मद घोरीकर भारत आक्रमण बा विशेष करी तांकर जो राजनैतिक विजय पर से कहले जे लो कास्ट इंडियन वर्कर्स he maintained that low caste Indian workers who along with the forces of Muhammad Ghori offering their services for government in the form of fighting force and for manufacturing sector to produce finished products. The new regime removed all kinds of discriminations against the city workers who in turn sustained it for more than 500 years.
आगु तुमको गोटे कथा कही रखे जे भारत रे आमर जो जाति प्रथा एक घृण्य प्रथा निश्चित भाव में यह एक घृण्य प्रथा सो या सहर मध्य मानुले तत्कालीन सहर मध्ययुग सहर मध्य मानुले ठीक अच्छे मोहम्मद घोरी जितेबले भारतर भारत रे शासन करने को आसिले आक्रमण परे परे से कौन कले ना यही जो नीच स्तर लोक बा निम्न वर्गर लोक मान स्थान दे शासन व्यवस्था सो सी कौन कले ना सिटी वर्कर्स भितर ये जो पार्थक्यता को से छाड़ देते माने सॉरी पार्थक्यता को हटे देते लोक लोक भितर डिफरेंस जो कि मुसलमान शासक 500 वर्ष धरिक शासन करे The religion of Islam acted as magnet attracting the city workers like elephant drivers, butchers, weavers to get converted to it and as it gave them some sort of upward social mobility. हमरो ये जो जाति प्रथा हिंदू धर्म रे ये जो जाति घृण्य जाति प्रथा विभिन्न निम्न वर्गर लोक जमी माउंट एलिफेंट ड्राइवर्स माउंट बुचर्स जी मैंने जो मांस फांस काटती ठीक अच्छे आमर चमार जाति कहती जेकोसी जातिर लोक हूँ सो वीवर्स तंती लोक सो ये सब लोक मैंने कौन कले ना कन्वर्टेड हो गले इस्लाम को कारण इस्लाम धर्म रे जाति प्रथा नहीं जदियो आम परवर्ती पर्याय तुम एटा नहीं पाठरे किंतु ना से भितर गोटे प्रकार उच्च नीचर भेदभाव रही ठीक अच्छे धर्म रे धर्म रे जो विभिन्न प्रकार जो सुनी सिया अच्छा अच्छा ता भितर डिफरेन्स रही दैट इज ए सेपरेट इश्यू मोर वर्तमान कॉन्टेक्स्ट रोची जे मोहम्मद हबीब आर्गु कर इस्लाम धर्म रे जेहेतु ये जो जाति फाति व्यवस्था नहीं तेणु एथिरे निम्न वर्गर जो हिंदू धर्म धर्म धर्मावलंबी लोक माने कन्वर्ट हो गले कोथि की ना इस्लाम धर्म not like during the time of Thakurs when military profession was hereditary and linked with land tenure the new regime recruited fighting force out of the working class of the town आगुरु कौन थिला ना राजा छुआ राजा सेनापति छुआ सेनापति इट वाज हेरिडिटरी इन नेचर ठीक अच्छे सो लोक माने साधारण लोकटे सेना विभाग रे चाकरी पाई परिबो नै सी सैनिक हो पारिबो नै ये जो मुसलमान शासक माने आसिले सेमान तो अल्प संख्यक लोक धरिक आसीथिले ना सो भारत वर्ष रे शासन करिया पई एमाने ए निम्न श्रेणी बा जो वर्किंग क्लास पीपल को नहीं के सहर रोथवा जो कर्मजीवी लोक मान को नहीं गोटे फोर्स कले आर्मी गठन कले द तुर्किश co-sharers of power drew their military force workers for karkhanas artisans personal servants musicians dancing girls etc from the large bulk of workforce available in the town सो ये जो तुर्की शासक मान कौन कले तुर्की आक्रमणकारी मान कौन कले ना ये जो मिलिटरी फोर्स गठन करिया पाई सेनाबाहिनी गठन करिया पाई से काटू सब लोक संग्रह कले ना कारखाना रे काम करथुवा लोक कारीगर आर्टिजन्स कारीगर किए कार पर्सनल सर्वेंट अच्छी ताकू म्यूजिशियंस संगीतज्ञ डांसिंग गर्ल्स ये समस्त को आर्मी रे किन
he views that the conquest of India by Muhammad Ghori as a revolution of Indian city level spearheaded by Ghorian Turks. So ତାଙ୍କ ମତରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ଭାରତୀୟ ସହରରେ ଏକ ଏଇ ଯୋଉ ଲିବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯୋଉ ଆମର ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା, ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଣିଥିଲା। Irfan Habib was critical of the way how the labor process was explained by Muhammad Habib to study the nature of emergence of urban centers in medieval India. Irfan Habib ଯାହା କହୁଥିଲି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ହାବିବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସୋ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତୀୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ତାର ଯୋଉ ଉତ୍ଥାନ ଉପରେ ସେ ନୂଆ କଥା କହିଲେ। ଯଦିଓ ଅର୍ବାନ ଇକୋନୋମି ବା ସହର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାର ଏକ୍ସପାନସନ ବା ତାର ବିସ୍ତାର କଥା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟାଉନର ସାଇଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାଇଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତ୍ରୟୋଦଶ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହେଇଥିଲା। ସୋ ତାଙ୍କର କଥା ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଆସିଲା ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଇନୋଭେସନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବା କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ଇନୋଭେସନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ୟୁଜ୍, ଯେପରିକି ପେପର, ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ବିଲ୍ଡିଂସ, flow of gold and silver for minting coins to promote trade, and the formation of the new ruling class that appropriated a large chunk of rural surplus through the new land revenue system and spent in towns where they resided. However, he argues that these changes happened not because of liberation of any segment of society. So ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଲିବରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିନଥିଲା। He maintains that slave labor or unfree labor was vital in almost all the domains of production in the Indian towns of this period. So ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଲେଭ୍ ଲେବର ବା କ୍ରୀତଦାସ ଶ୍ରମିକ ବା ଯୋଉ ଅନଫ୍ରି ଲେବର ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସହରର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। Actually, slave system is not, it was there in India, but it was not the same as in case of medieval Europe. ୟୁରୋପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଲେଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଲେଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି ନଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। Scholars like B.D. Chattopadhyay and R. Champak Lakshmi have traced the origins of medieval towns down back to 9th century onwards. B.D. Chattopadhyay, R. Champak Lakshmiଙ୍କ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରଠାରୁ। B.D. ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିକି କହିଲେ ଯେ he has highlighted the emergence of townships in the Indo-Gangetic divide, the upper Ganga basin and the Malwa region thanks to the forces emitted by trade. So ଏଇ ଯୋଉ
नॉर्थ वेस्ट इंडिया रे ये जो डेवलपमेंट है टाउनशिप रे इंडो गैंगेटिक वैली रे ताहा कहा जो है ना वाणिज्य व्यवसाय. He examines the nodal economic points of the geographies and shows that before their emergence as full-fledged urban centers under the Gujjara Pratiharas, they were the pivotal points in local trade. He estimates the appearance of 20 towns in Gujarat, 131 in Rajasthan, 78 in Karnataka during the 11th century and 70 in Andhra Pradesh during the period from 1000 to 1036 AD. Though the origins of many of these towns were caused by trade, a considerable number of them were loci of power for the regional rulers. However, R. Champak Lakshmi focuses on South India and examines several towns of varying size and nature in Chola territory that appeared uh, during the period between 9th and 13th centuries, and it will happen due to the external trade. By her meticulous analysis, she shows that all the medieval South Indian towns were not alike. आर चंपर लक्ष्मी का मत अनुसार जो साउथ इंडिया रे जो सहर गुड़िक गढ़ी उठिला ता एका प्रकार नथिला. On the contrary, she speaks of marked distinctions visible among the mercantile towns, royal towns, ceremonial cum religious towns of the Cholas, and militarized and fortified towns of Vijayanagara kingdom. So विभिन्न सहर जेभଳି कि mercantile town रे अलगा थिला, राजकीय सहर रे अलगा थिला, विजयनगर साम्राज्य राजकीय सहर रे अलगा थिला, चोल मानकर टाउन गुड़िक अलग थिला. So the revival of long distance trade in the 10th century and the eventual organization of commerce by various guilds caused many towns. So ये जो long distance trade by सुदूर वाणिज्य व्यवसाय अनेक टाउन गठन रे साहाय्य करथिला, अनेक गिल्ड गठन रे साहाय्य करेथिला. ठीक है. Concomitantly, there also evolved several urban centers with the convergence of surplus from Brahmadeyas and temples, and with the political and economic power getting increasingly focused on the temple in the 9th century. The latter became the central mobilizing force. Anyway, the revival of long distance trade in 10th century and the eventual organization of commerce by various guilds caused many towns, particularly along the coast, to evolve Chola territories that extend to Andhra and southern Karnataka. So ये जो दशम शताब्दी बेलू कौन है ना कॉमर्स वाणिज्य व्यवसाय वृद्धि फल अनेक सहर गढ़ी उठी पर्टिकुलाली चोल टेरिटोरी आंध्र एवं दक्षिण कर्नाटक रे. Concomitantly, there also evolved several urban centers with the convergence of surplus from Brahmadeyas and the temples, and with the political and economic power getting increasingly focused on the temple in 9th century. So, जो मंदिर गुड़िकर जो प्रतिपत्ति बढ़ला, जो धन संपत्ति है से मंदिर को कभर करके चतुर् पाखापाखि एरिया रे सहर गुड़िक सहर गढ़ी उठी. The latter became the central mobilizing institution of royal cities like Tanjavur, where the elites and power groups occupied the spatial ring around the ceremonial center of temple, and while the artisans and service groups lived in the outer ring. So ये जो मंदिर पाखरे को माने रहिले ना पुरोहित माने रहिले बा जो वर्शिपिंग क्लास रहिले, आउ गोटे रहिले political group of people. The new urban processes around Bira Dalam and Surdalam
which evolved as military protected towns in the 13th century, were indicative of weight of power that mercantile bodies appropriated by this time. She also refers to the fortified urban centers which the Nayakas of militarized Vijayanagara state set up in the areas of their control from 14th century onwards as distinct from sacred complex. So, ये जो सहर गुड़िकर विभिन्न प्रकार सिचुएशन को लेकिन विभिन्न प्रकार अवस्था को लेकिन गढ़ी उठी कौटी मंदिर को लेकिन कौटी जो वाणिज्य व्यवसाय को लेकिन सब विभिन्न आस्पेक्ट को लेकिन सहर गुड़िकर परिवर्तन होता इन so thank you dear friends for giving me a patient hearing. So in the next class tomorrow we will discuss the other aspect of this chapter. Thank you. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you very much. Dear learners, please, one announcement for all of you that please intimate your friends regarding this MHI 10 class, because most of the students, they don't know. I hope that they don't know about this conduct of this online class. So please intimate them through WhatsApp so that they can be able to join the online class. So if you have any problem, you can also write in the chat box, or you can also write in the WhatsApp. So you have a WhatsApp group I have seen today, and in the WhatsApp group you are also writing many informations. That is very good, very informative. Thank you for your initiative, and this initiative please continue till the completion of the program. And Jyoti, and please, if you are in the online, please, if you are listening to me, please intimate your friends to join this online platform in a massive way, so that it will be encouraging. Today also I found that 14 students, 15 students, they are joined, and it's a very good encouraging numbers. So please, and those students also, I have already shared all these this meeting ID with other students of Koraput region, so that they can be also able to join this online platform. With these few words, I now conclude. I thanks all the participants and the resource person for joining this online program to make it a grand success. So with these few words, I conclude, and once again on behalf of the regional center, on behalf of the staff of the regional center, on behalf of the student, I heartily extend my gratitude to the resource persons for sparing his valuable time. Thank you, and see you tomorrow at exactly 6 p.m. Puri